میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہے، میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو، ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو، ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو۔ لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا، میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے، پیرالائز ہے، لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ میری کمٹمنٹ تھی۔ ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی، دوسرے اسپتال میں میرا بھائی، اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی، وہ اسپتال میں تھا، گھر گر چکا تھا، مسجد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے۔ میں تو دل سے بات کر رہا ہوں، سوال اٹھا رہا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے۔ آپ ساتھ دو گے، آپ کڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا، خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا۔ سر 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک آگ کو روکنا، اس کی میں نے تنبیہ بھی کی، سوال بھی اٹھائے، خدشات بھی بتائے، اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے، بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر TRP بھی ملتا ہے، اتنے مرے اتنے گر گرے وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاڑنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار، ہماری زندگیوں کا ہے۔ میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھے کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے اس سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجاراداری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی۔ ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگز میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے۔ تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا۔ پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر
کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے, باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر. اگر باڑ لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا. اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرف بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے. اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے. تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو, اس کے ساتھ یہ کر دو, اس میں مصروف ہے. ڈیفنس منسٹری کی ہے, وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا. یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں. پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں. امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا, ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا, اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول. یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو, کسی کی ریوائیول کرو, آگ لگا دو, اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی, کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا, کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے کنسپیریسی تھیوریز ہے. پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. ثابت ہوا میرے پاکستانیوں, اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا, اپنے قوم کو بتاتا رہا. آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے, امریکی غلام, اعلی کار اور سہولت کار, سب خاموش رہے, کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی, بلکہ گیم کا حصہ تھے. میرے پاکستان کو, میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا, پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی. اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا. اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں, تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے, کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے, کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. قوم کھڑی ہو گئی ہے. قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے, ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا, ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. میرے پاکستانیوں, آج تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے. کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا. کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے. جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا, اس کے بعد آپ کو وزیرستان, کرم, خیبر, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باجوڑ, ملاکنڈ ڈویژن, ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے, 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا. سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا. میں کیوں فریاد نہ کرتا, میں کیوں آواز نہ اٹھاتا, میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے, آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے, جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی, اسکول تباہ تھے, سڑکیں تباہ تھی, لوگوں میں خوف تھا, کاروبار تباہ تھے, سیاحت ختم ہو گئی تھی. آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی, اسپتال بن چکے, سڑکیں بن چکی, موٹر ویز بن چکی, اسکول بن چکے, سیاحت کا فروغ ہو گیا. صرف اس عید الاضحیٰ پہ 3 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن آئی. لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی, لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات منایا ہے. میں کیسے کسی کے حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار, امریکہ کی غلامی کرنی تھی, کر لی. پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا, مسلط ہو لیا.
1100 अरब के केसेस माफ कराने थे, कर दिए, लेकिन मेरी जिंदगी से तो मत कह लो यार। हमारे लोगों ने, आपको याद है कि एक एक घर से जनाजे उठे थे जब इन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए थे। एक ड्रोन हमला होता था, उससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता था। इमरान खान के दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ तो दहशतगर्दी भी नहीं थी। इमरान खान ने तो अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, एब्सोल्युटली नॉट का, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो फिर हमारे अमन को तबाह करने के लिए ये कौन सी पॉलिसीज होती है? ये कौन सी अकल की बात है जो इसमें 13 जुमातें इस वक्त शामिल है अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन में और उसके दूसरे मरहले में। यार अपने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में सियासत करनी है। जब आपके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म वो बेटा हो जो कि नारा लगाए, तकरीर में कहे कि मैं अलकायदा को कहता हूं, तालिबान को कहता हूं कि पंजाब के उस पार जो करना है वो कर ले, अटक के उस पार जो करना है कर ले। यार ये इंसान है यार। दूसरा ये कि दहशतगर्दी, तालिबान, ये तो आप लोगों का आपस में था। इधर आप मार रहे थे, उधर वो आपको मार रहे थे। हम तो अमन के दाई हैं। हमने तो ना ड्रोन हमलों की इजाजत दी, ना हमने अड्डे दे दिए, ना हमने जंग की बात की। हमने तो तरक्की दी है, हमने तो खुशहाली दी है, हमने तो अमन दिया है, हमने तो माशी सरगर्मियां दी है, हमने तो लोगों की जिंदगियां बदली है। देख लो ना आज का स्वाद, देख लो कि वहां पे कितना सफर तय हुआ है, देख लो खैबर पख्तूनख्वा। तो फिर क्यों हमारी जिंदगी उससे खेल के हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं वार्न करता हूं फिर से कि कौम तो खड़ी हो गई है, कौम ने फैसला सुना दिया है, कौम अमन चाहती है, कौम आपके गेम एक्सपोज हो चुका है। ये पता नहीं हमारे साथ आगे क्या कर रहे थे। एक्सपोज तो आपका गेम हो गया है, लेकिन अब हमारी जिंदगियों से मजीद मत कह लो, हमारे अमन से मत कह लो, हमारी खुशहाली से मत कह लो। यार एक धमाका जब होता है 50 सा बंदा शहीद होता है, वो किसी का बच्चा होता है ना, किसी का बेटा होता है, किसी की कोई बहन होती है। जब घर पे मटर गोला लगता है तो हमसे पूछे ना, हर घर से हमने जनाजे उठाए हैं। हमारे घर तबाह हुए थे, हमारे अस्पताल तबाह हो गए थे, हमारे मसाजिद शहीद हो गए थे। तो क्यों हमें उस तरफ लेके जा रहे हो? हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम वो दे चुके हैं। हमें अपने डर्टी गेम में मत घसीटो, हमें अमेरिकी रिजीम चेंज की खातिर हमें इसका ईंधन मत बनाओ। हमें अमन से जीने दो, हमारे लोगों को अमन से जीने दो। और मैं वार्न करता हूं, बातें हमने बहुत की, सवाल बहुत उठाए। मैं कल कहीं पे सुन रहा था, कह रहे थे कि ये बार बार बात कर रहे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी हुकूमत है, तो सरहदें भी हमने संभाल ली है, सरहदों पे हम खड़े हो गए हैं। बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ से वहां पे घुस आ रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मैंने बता दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री है, झुकते मार रहे, किसी और की जिम्मेदारी है? सब मसरूफ है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने हमारा साथ देना है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की स्वात मलाकन डिवीजन दिर की बात नहीं है। हमारे एक एमपीए मलक लियाकत अली, उसके साथ 5 बंदे शहीद हुए, उसके घर से 2 जनाजे निकले, खुद वो अस्पताल में है इस वक्त। बहुत सारी इस किस्म की चीजें हो रही है, प्लानिंग्स हो रही है। आपने हमारे साथ मिलकर इसको रोकना है। मैं अपने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लोगों को कहता हूं, ईंधन हम बनेंगे तो आग की तपिश सब महसूस करेंगे। हम सब ने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, इस गेम के खिलाफ खड़े होना है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हम तो इतना कर सकते हैं कि अपना हक अदा कर सके, हम अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके। न इस वक्त हुकूमत में है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, 13 जुमातें हैं, उनकी पॉलिसी है। और पॉलिसी जो थी नेशनल सिक्योरिटी का भी पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग दी गई थी। हम तो उसमें नहीं है, हम तो हुकूमत से भी बाहर है, पार्लियामेंट से भी बाहर है। उसमें क्या ब्रीफिंग हुई थी? किसी ने आपको, किसी 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हुकूमत के, किसी एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे मुस्तकबिल के क्या फैसले हुए हैं? मरूंगा मैं, जनाजा मेरा उठेगा, अमन मेरा तबाह होगा, तरक्की मेरी खत्म होगी, खुशहाली मेरी खत्म होगी, मेरे अपने लोग इस जंग का ईंधन बनेंगे। मुझे पता ही नहीं है, आप कैसे मेरे फैसले कर सकते हो? आप होते कौन हो हमारे लोगों को अमेरिका के ऊपर भेजने के? आप होते कौन हो फिर से हमें इसका ईंधन बनाने के? तो मैं अपने लोगों से कहता हूं, पूरे पाकिस्तान से, खुदा के लिए आवाज उठाए, खुदा के लिए खड़े हो जाए।
मलाकन डिवीजन ने तो कल आपको वाज़ेह पैगाम दे दिया ना सड़कों पे निकल के कि गेम क्या हो रहा है, उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया। अभी आप भी हमारा साथ दें और साथ देंगे तो पाकिस्तान जो 80,000 सिर्फ मलाकन की नहीं शहीद हुए थे, आपकी इस्लामाबाद इस मेरठ में साथ में यहाँ पे भी धमाका हुआ था, लाहौर में भी आपके भाई शहीद हुए थे, कोटा में भी हमारे भाई शहीद हुए थे, कराची में भी शहीद हुए थे, सबके जनाजे उठे थे। आगाज कहां से हुआ था? वजीरिस्तान से। भुगता किसने? पूरे पाकिस्तान ने। अब भी ये होने जा रहा है, इसको रोके, इसमें हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़े हो जाए। और मैं चीज आखिर में कह दूं, न तो मैं बेवकूफ हूं, न मुझे ये नहीं है कि समझ नहीं आ रही कि जो मैं 2-3 महीने से जो इतनी आलमी ताकतों का गेम अपने कौम के सामने रख रहा था, एक्सपोज कर रहा था, तो इसका मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए, मेरे लोगों के लिए क्या नताइज होंगे। मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन जब मेरी वालदा को गोली लगी थी तो मैं स्टूडेंट लीडर था। मैं अगर इस सियासत में आया था और हल्की की सियासत में आया था, मैंने एक कमिटमेंट की थी अपने साथ कि मेरी वालदा तो कोमा में है, पैरालाइज है, लेकिन मैं किसी और की मां के साथ ये नहीं होने दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी। एक तरफ मेरी वालदा अस्पताल में थी, दूसरे अस्पताल में मेरा भाई, उसको 8-9 गोलियां लगी थी, वो अस्पताल में था, घर गिर चुका था, मस्जिद शहीद हो चुकी थी। उस वक्त ये कमिटमेंट मैंने की है। मैं तो दिल से बात कर रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे पाकिस्तानियों के मुझे इससे 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप साथ दोगे, आप खड़े रहोगे तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा बचेगा तो पूरी पाकिस्तान का अमन बचेगा। आप सब ने, पंजाब के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, गिलबिस्तान के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, आपने साथ देना है, आपने आवाज उठानी है। और इंपोर्टेड हुकूमत में बैठे हर शख्स से सवाल करे कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन में ये गेम कर रहे हैं तो सियासत तो करे, हुकूमत में आने के लिए हमारी जानों के ऊपर तो ना करे। मेरी इतनी गुजारिश थी, मेरी इतनी बात थी। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम इससे भी निकलेंगे, लेकिन जब बड़े लेवल पे जिनकी जिम्मेदारी है, अगर ये चीजें वहां से शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे तो हम रोक सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी जिस तरह आपने पेशावर में सवाल क्योंकि केपीके में आता, आपने सारा उसका सिचुएशन आपने बयान की, लेकिन में सर गवर्नमेंट पीटीआई की है सर, क्या इस मामले को वफाक के साथ एवरकेटी की हुकूमत ने उठाया है इस सारे इशू को, उन्होंने कोई इस पर जवाब दिया है या उन्होंने खामोशी किया? इम्पोर्टेड हुकूमत से तो 2-3 महीने से मैं खुद पूछ रहा हूं। मैं अगर फरजंद जरदारी के ऊपर एक जुमला बोलूं तो 5 मिनट नहीं लगते मुझे जवाब आने में, 5 मिनट नहीं लगते। मैं अगर मफरूर इश्तियारी के ऊपर बात करूं तो 10 मिनट नहीं लगते, आप डायरेक्ट आपको वो रिबटल होता है कि क्या होता है वो आपको आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर खामोशी। जब गेम का हिस्सा है, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इन्वॉल्व है, तो वो किस तरह करेंगे। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, मैंने आपको खुद अपनी बातों में भी कहा कि ये भी मैं कल से पूछ रहा हूं, जब घर तक आ जाती है ना आग, तो फिर उसके बाद जितनी मुंह उतनी बातें भी शुरू हो जाती है। तो मैं यही सवाल कर रहा हूं ना, सरहद के ऊपर फेंसिंग हमारी हुई थी, हमारा तो सरहद लगा है अफगानिस्तान के साथ, सरहद पे तो केपी पुलिस तैनात नहीं होती, सरहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कहां से ये आ गए, किस तरह आ गए? तो और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बिल्कुल बात की है, मुझे उसकी भी मालूमात है। बल्कि 3 दिन पहले जब स्वात की आपको ये खबर रात को आनी थी, तो उससे पहले भी सुबह मीटिंग थी, जिसमें जो भी हमने बताया उसको मानने से इनकार कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। बताइएगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का, एक हुकूमत है, सिविलियन, और उसके बाद एक सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका आपस में बहरहाल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलैबोरेशन रहता है। आपके सीएम साहब की तरफ से या बाकायदा उन सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से, इस एप्लीकेशन से आगाह दिया गया या नहीं? और दूसरी बात, पोलिटिकल रिवाइवल की आप कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है केपीके में, उसको सीज करने के लिए जो मौलाना फजल रहमान साहब है, उनको स्पेस देने के लिए सारा काम हो रहा है? आलमी ताकतों की लड़ाई, अमेरिका के लिए एयर स्पेस अड्डों की, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब आप आलाकार सहूलतकार बनते हैं तो उनके भी मफादात होते हैं, आपके भी कुछ मफादात होते हैं। मैंने दोनों आपको
तफसील से बता दिए। यहाँ पे एक सवाल जन्म लेते हैं जो आपने बात की कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हेरारकी है, क्या उस हेरारकी पे बात हुई? यस, हुई। क्या 3 दिन पहले की जिस मीटिंग का मैंने हवाला किया, क्या ये हेरारकी उसमें थी? यस, थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इसमें बहुत कुर्बानियां इस जंग में भी दी है। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का मैंने जिक्र किया, उसमें शहीद हो गए हैं। पॉलिसी किसकी होती है? हुक्मरानों की होती है। मैं अमेरिका सिफारत खाने के केबल्स पढ़ रहा था दहशतगर्दी के जंग के हवाले से, और मैंने इन्हीं दिनों में फिर से पढ़े, इसलिए पढ़े कि यार मैं समझू तो सही कि उस वक्त क्या गेम हुआ था कि जो अब हो रहा है। उसमें हो क्या रहा था? असफंदियार वली खान और डॉलर, क्या कहानी है, क्या हुआ था? अफरासिया फटक के अमेरिका सफीर से मुलाकात, इदारों के बारे में क्या कहा, इन इलाकों में तालिबान के हवाले से क्या कहा, और यहां पे जंग लाने के हवाले से क्या कहा। आसिफ अली जरदारी, तारिक अजीज मुशर्रफ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नवाज शरीफ की रायगढ़ में 3.5 घंटे मुलाकात, इसाक डार उसमें भी मौजूद थे। फिर यूसुफ रजा गिलानी, सब जाके अमेरिका के पाव पढ़ के क्या कह रहे थे? अगले इलेक्शन की तैयारी, और साथ में कहते थे कि हम ये जंग आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि हम कमिटेड है। ड्रोन हमले मजीद करो, लोगों को मजीद मारो, ऑपरेशन को मजीद तेज करो, वो जगह रहती है उधर भी घुसो, आपके इदारे सिंसियर नहीं है। ये तमाम बातें करते हैं, लेकिन वक्त बदलता है, गद्दार भी की डिफिनीशन, मुहब्बतनी की डिफिनीशन भी बदल जाते हैं। वक्त बदलता है और गुलाम जो होते हैं वही गुलाम रहते हैं, अदाकार वही अदाकार रहते हैं, और आज वो फिर से उसी जंग में हमें ईंधन बना रहे हैं। तो वही चीजें आप पढ़ लें। मैं मीडिया के दोस्तों को भी कहता हूं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको भी कहता हूं, मैंने पिछले 1 हफ्ते में सारे अमेरिका की सिफारत खाने की वही पुराने 20 साल की दहशतगर्दी की जंग के सारे केबल्स पढ़ लिए। आप भी एक दफा देख लीजिए, और जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसको उसके साथ लिंक कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। आपसे एक चीज की अपील के लिए आया हूं, 50 से ज्यादा चैनल्स है, एक चैनल पे हमारे हालात रिपोर्ट नहीं हो रहे यार। एयरवाई तो बंद कर दिया ना, बोल पे भी हो रही थी, बोल को भी धमकियां मिल चुकी है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कर लिए। और वो 2 दिन से उन्होंने इशू उठाया, वो तो चले गए। मैं आपको कह रहा हूं कि यार इन चीजों को करे, और जो हालात आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करे, मिलकर मुकाबला करना है। अमन की बात हमने करनी है। हम तो न ड्रोन हमलों में है, न तो हमने कभी ऑपरेशन की हिमायत की है, न हमने यहां पे अमेरिका की जंग के हिस्से बने हैं। तो हमारे साथ क्या है? हम तो अमन वाले हैं यार, अमन के दाई हैं। हमारे इलाके के लोग तो खुशहाली और तरक्की की तरफ गए हैं। तो यही हमारा पैगाम है, अमन, मोहब्बत, खुशहाली, तरक्की। और यही अपील है कि हमें अपनी लड़ाई में ईंधन मत बनाओ, और अगर बनाओगे तो इस वक्त हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, और आपकी गेम प्लान को हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हम आपकी पॉलिसी को कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है। हम आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि वी विल फाइट, और हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें आप किसी और से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे, और हम इंशाअल्लाह अपने कौम के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। मैं तो बताइएगा कि माजी के औराक अगर बैठ कर देख ले तो खान साहब भी इन तालिबान की हिमायत में नजर आते थे, और इसी वजह से उनको तालिबान खान के नाम से बुलाया जाता था। yes. तो एक भी बताइएगा कि क्या उस वक्त तालिबान ठीक थे, अब बुरे हो गए? मैंने समाज में जो है कि साथ जर्गी भी हो गए हैं, तो उस सवाल से बताइए। मैंने पूरी इतनी आपको पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया। आपके वही 2 सवाल जो सोशल मीडिया पे ट्वीट करके आप करो, ये नहीं है। 2001 से इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। 2004 में अकेले मेंबर असेंबली थे, उन्होंने उठ के कहा कि वजीरिस्तान फौज मत पैरो। अमन की बात करते रहे, मुज़ाकिरात की बात करते रहे, कहते कि जंग में मत घुसो। क्या 20 साल बाद अमेरिका जब मुज़ाकिरात के लिए बैठ गया और अफगानिस्तान से चला गया, तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया ना? क्यों 80,000 लोग अपने कुर्बान कर दिए? ना होती इजराई, आज भी लोग ना आते। लेकिन अगर आपकी वही पॉलिसीज ना होती, इमरान खान होता है तो अमन है, इमरान खान नहीं है तो आपने फिर से वो पॉलिसी शुरू कर दी। क्योंकि इमरान खान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनता। इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कह सकता है कि क्या हम आपके गुलाम है? इमरान खान पूछता है, मैं अपने लोगों के ऊपर किसी की लड़ाई मुसल्लत नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को किसी की जंग का ईंधन नहीं बनाऊंगा। इमरान खान ने लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं की, अमन की बात की। हुआ क्या? हम तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके गए। यही तो प्लानिंग है कि ये बात करो, फिर कहो कि वो आ गए हैं, फिर इनको और उनको लड़ाओ, पीटीआई मरे, अवाम मरे। हम बेवकूफ नहीं हैं, हमने आपकी स्टेप में नहीं आना। हमने अपनी तरक्की खुशहाली की बात करनी है, पूरा पाकिस्तान अपने साथ मिलाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जनाजा उठेगा स्वाद से,
तो तपिश आप महसूस करोगे, जनाजा उठेगा दिल से, तपिश आप महसूस करोगे। अपने लिए खड़े हो जाओ यार, 80,000 कुर्बान कर लिए हैं, मस्जिद कुर्बान करने हैं, 7,000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से से उसका ताल्लुक है ना। आपके भी जनाजे उठे हैं, उनके लिए खड़े हो जाओ, क्यों किसी की लड़ाई में घुसते हैं। तो ये मेरा ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, आप लाते हो या आप स्ट्रेटजी बनाते हो, पीटीआई को लड़ाओ, दोनों लड़े, और यहां पे अमेरिका को और उनके अलाकारों को मौका मिले आपके गेम प्लान का। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया।